Bismillahirrahmanirrahim. Today is the second part of first lecture. So in the previous lecture, we were discussing about what is system means, the basics of control systems, what is control system and the historical background, what is open loop system and what is closed loop system. And we have also discussed about the textbook that is recommended for control system, that is Modern Control Engineering by Ogata, and fifth edition. So we will revise briefly the previous lecture. So control system is what? Control system is such a system that is interconnection of various elements in order to perform a specific operation. So it is the combination of basically two words. Number one is control and what is system. If we talk about the system, what is system? System means there is some input and in the corresponding there is some output. When we apply the input to the system, and then we will attain some output. But what is the control system? Control system means we can observe the output constantly, and either we are attaining the desired values or not, we can change the state of the input. If we can change the state or behavior of the system, then this is called as the control system. And if we talk about the classification of control theory, so there are the three different eras of control theory. Control theory is something about the change, observe the changing behavior of input and output. Okay. So the classification of control theory, basically it is divided into three areas. Number one is classical control theory. It is also called as the conventional control theory, and second one is modern control theory, and third one is the robust control. So in order to study the classical control theory, we must have some mathematical knowledge and mathematical background about the differential equations, Laplace transform, basic physics, ordinary and semi-logarithmic graphs. And for modern control theory and the robust control theory, we must know about the linear algebra and matrices. So इस सब्जेक्ट में दैट इज जब हम व्हेन वी विल स्टार्ट विद अवर सब्जेक्ट, तो हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट इज द क्लासिकल कंट्रोल थ्योरीज में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद वी विल स्टडी अबाउट द देयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसके अलावा आगे हम लोग जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे तो उसमें डिफरेंट हम लोग ग्राफ पेपर्स या सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर्स को डिस्कस करेंगे। So this is basically the recent area is about the automation control. हम इसके एप्लीकेशंस अगर देखें तो कैसे देख सकते हैं? ऑटोमेशन कंट्रोल का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली जिसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, मतलब मैनुअली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल आप लोगों ने देखी थी, उस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि एक जो वाटर लेवल था उसको चेक कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली एक ऐसे लेबर की ज़रूरत है या फिर वहाँ पे कोई जो ड्यूटी पे पर्सन है उसकी ज़रूरत है जो कि कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करे कि टैंक में वाटर लेवल क्या है, और उसके बाद वो मैनुअली क्या करे, उस वाल्व को क्लोज कर दे या ओपन कर दे इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ वाटर। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, फिर उस मैनुअल कंट्रोल से स्विच करके ऑटोमेशन कंट्रोल की तरफ। ऑटोमेशन कंट्रोल की एग्जांपल्स आर लाइक दिस: द स्पेस व्हीकल सिस्टम्स, robotic systems, modern manufacturing systems, industrial operations like the control of temperature, pressure, flow, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री में जाते हैं आप, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक केमिकल इंडस्ट्री में जाते हैं। अब एक केमिकल इंडस्ट्री में जाएंगे, वो वहाँ पे कितने केमिकल्स इनलेट इन वो इन कर रहे हैं, इनलेट हो रहे हैं,
उनका एक प्रोसेस होगा, पूरा एक प्लांट होगा, कितनी क्वांटिटी चाहिए, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है लिक्विड का, उसमें क्या लेवल्स हैं सारे, तो ये हमें मैन्युअली देखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वो ऑब्जर्व करता रहेगा कॉन्टीन्यूसली। जिसमें हम लोगों ने कुछ इंटेलिजेंट कंपोनेंट्स लाइक कंट्रोलर ऐड किए हुए हैं, जो कि वो क्या करेंगे, उसको देखेंगे, मेजर करेंगे वैल्यूज़ को, और उसके बाद देखेंगे प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, स्टॉप कर जाएंगे। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो अनलेस और अनटिल हम लोग अपने सिस्टम में इनपुट में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें अब सिस्टम की जो इनपुट है उसमें मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी सिस्टम क्या करेगी, हमारे आउटपुट को फीडबैक में कुछ एलिमेंट कनेक्ट करेंगे जो कि आउटपुट को कनेक्ट कंपेयर कर रहे हैं इनपुट के साथ, और हम कंट्रोलर को ये बता रहे हैं कि इतनी चेंज हम लोगों ने करनी है, कम करना है, ज़्यादा लेवल करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आगे वो हमारे सिस्टम में क्या करता है, वेरिएशंस करता है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली दो डिफरेंट पैरामीटर्स देखे थे, दैट इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल्स एंड मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स। कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हमारे पास क्या थे, वो वेरिएबल्स जिनको हम लोगों ने कंट्रोल करना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, ये हमारे आउटपुट से रिलेटेड है। जो कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिनको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मैनिपुलेटेड वो वेरिएबल्स हैं जो कंट्रोलर से आ रहे हैं, मतलब कंट्रोलर अपने वेरिएबल्स में जो भी चेंज कर रहा होगा ताकि आगे फर्दर वो डिजायर्ड आउटपुट अचीव हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्यों ज़रूरत हमें महसूस हुई कंट्रोल सिस्टम की, ऑटोमेशन कंट्रोल की, दैट्स वाई कि हमारे पास अभी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में समटाइम्स कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल एक रेडियो एक्टिव जगह है जहाँ पर हमारे पास रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा रेस हैं, तो वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जाना पॉसिबल भी नहीं है। तो वहाँ हमें ऐसे रोबोटिक सिस्टम की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे उस सिस्टम में जो है वो सर्वाइव कर सके। सिमिलरली हमें क्या है कि अब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट हैं जिनके लिए इनफ नहीं है कि आपके पास लेबर वो काम कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ए मशीन्स को, रोबोटिक्स का यूज़ किया, रोबोटिक आर्म्स का यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर्स कर लेते हैं। मतलब जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं आपके पास इंडस्ट्री में, जो ऑटोमेशन पे इंडस्ट्रीज हैं जितनी भी हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री में आपको बताया कि इंडस्ट्री में एक चेन ऑफ ऑपरेशंस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ऑपरेशन करेंगे और आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। एक प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए हमें चेन ऑफ ऑपरेशंस चाहिए, और उन प्रोसेसेस में से आपकी प्रोडक्ट गुजरती है और अल्टीमेटली वो एक फाइनल स्टेज तक जाती है। अब एक जगह से उठाकर आपने दूसरी जगह शिफ्ट करना है अपनी प्रोडक्ट को, उसके अलावा उसको एक प्रोसेस से गुजारना है, तो उसके लिए क्या है आपको कि अब आपके लिए वो ही काम क्या करेंगी, रोबोटिक्स आर्म या फिर कोई भी ऐसी मशीन्स करेंगी। उसके लिए हमें ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट इज़ नाउ अबाउट कुछ इसका देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल थेरीज। इसमें हमारे पास कब स्टार्ट हुआ है, ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम्स पे कब से काम हो रहा है। उसमें काम हो रहा है 1922 से। ठीक है, सबसे पहले 1922 में जब ऑटोमेशन कंट्रोल पे आप स्विच हुए हैं, तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या था कि आप लोगों ने ऑटोमेशन कंट्रोल में स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो उसमें स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या यूज़ किया, पहले उसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया, उसमें डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट किया। उन इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें सिस्टम क्या हुआ, एक हमारा सिस्टम स्टेबल सिस्टम हमने अटेन कर लिया। उसके बाद आफ्टर दैट इन 1932 डेवलपमेंट ऑफ सिंपल प्रोसीजर टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज दो सिस्टम। हमें पता है कि पहले हम लोग किस पे स्विच, पहले किस पे हम लोगों ने स्टडी किया, जब जस्ट द इनिशियल और बेसिक्स थी हमारे पास, फंडामेंटल्स थे कंट्रोल सिस्टम्स के। तो हम लोग पहले किस पे काम कर रहे थे, ओपन लूप सिस्टम पे। ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको हम लोग दोबारा से भी डिस्कस करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रीफली यही कि आपके पास 1932 में जब हम लोगों ने क्लोज लूप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, तो आपके पास ईयर था जब हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया गया। उसके बाद 1934 में सर्वो मैकेनिज्म। अब सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है,
ये हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे आगे विद जैसे जैसे हम लोग अपने लेक्चर्स में आगे मूव करेंगे। Okay, after that 1940 to 1950 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, लाइक बॉडी प्लॉट, रूट लोकस मेथड्स। इसके अलावा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले डिफरेंट इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स डेवलप किए गए, पीआईडी कंट्रोलर्स यूज़ किए गए। अब इसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आपने शायद पहले भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में या फिर एनालॉग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पे आप लोगों ने ये बॉडी प्लॉट का नाम ज़रूर सुना होगा। ये बेसिकली मेथड्स हैं मैथमेटिकल, जहाँ जब हम सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करते हैं तो ये उसको डिटरमिन करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग रूट लोकस और बॉडी प्लॉट मेथड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सारा एरिया वो था 1922 से लेके 1950s तक का, जब हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स की बात कर रहे थे, और इसके अलावा हम लोग क्लोज्ड सिस्टम की बात कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन देयर इज ऑटोमेटिक कंट्रोल तो उसका क्या मतलब है, देयर इज डेफिनेटली एक क्लोज लूप सिस्टम होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम को हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल हम एक क्लोज लूप सिस्टम की बात ना कर रहे हों। और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही थी। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया आफ्टर डेट इन 1960s। तो वहाँ पे एरिया स्टार्ट हुआ मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ बोथ डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकास्टिक सिस्टम्स। अब ये डिटर्मिनिस्टिक क्या होते हैं, स्टोकास्टिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। स्टोकास्टिक हम लोग कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बिहेवियर हमें पता ना हो, कि रैंडम हो, मतलब हमें नहीं पता कि हम उसके आगे आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आगे आगे उसकी इनपुट कैसे चेंज होगी उसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम लोग डिटर्मिनिस्टिक की बात करें तो ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर एक चीज़ रिपीट हो रही है तो हमें ये पता है, जैसे आप लोग पीरियोडिक सिस्टम के बारे में आपको पता है कि व्हाट इज पीरियोडिक सिग्नल, कि वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद क्या करेगा, अपने बिहेवियर को रिपीट करेगा, ठीक है। एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या करता है, वही सेम पैटर्न को रिपीट करता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सिमिलरली डिटर्मिनिस्टिक क्या होगा, कि वो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, दैट्स मीन कि आप इसके फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी जी इसके बाद ये दोबारा से ये साइकिल आएगा, इसके बाद दोबारा से ये साइकिल आएगा। लेकिन स्टोकास्टिक प्रोसेसेस में क्या होता है, स्टोकास्टिक सिस्टम्स में आपका जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप इनपुट को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, और वो जो बिहेवियर है वो क्या होता है, रिपीट नहीं होता। तो ये दोनों किस्म के सिस्टम्स को डील जो किया गया है वो किस एरिया में किया गया है, इन मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आ गया 1980 से 1990s में हम लोगों ने किया जो रिसेंट एरिया है ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये हम लोग कर रहे हैं रोबस्ट कंट्रोल। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिसेस को इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी को चेक करने के लिए। अभी हम लोग जो अभी टेक्स्ट बुक है दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी, और कन्वेंशनल आपके जो है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फ्रीक्वेंसी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 2 हम लोग देखेंगे डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, ब्लॉक डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करेंगे, इनके कंपनसेटर डिज़ाइन करेंगे। मींस कि हमारा जो ज़्यादातर काम रहेगा दैट इज़ अबाउट द एरिया ऑफ क्लासिकल और कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी। और उसमें जो बस लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज़ अबाउट द मॉडर्न कंट्रोल, जिसमें हम लोग कुछ एक तो कंट्रोलर्स को डिस्कस करेंगे, और एक बिल्कुल लास्ट में एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग रोबस्ट कंट्रोल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैट्रिसेस के थ्रू वहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, उसको हम लोग इन सब चीज़ों को कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट में कुछ चीज़ें थी जो कि अभी इसमें एक पॉइंट से जो हमारे मिसिंग थे। मतलब हमने ये देखा कि हमारे पास बेसिकली 3 डिवीजन्स हैं, क्लासिकल, मॉडर्न, रोबस्ट। क्लासिकल में हमारे पास क्या है, जो क्लासिकल मेथड्स हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस भी है इसमें, कॉन्सेप्ट्स भी हैं इसमें। हम लोग ऑटोमेशन कंट्रोल की भी बात करेंगे, ओपन लूप सिस्टम की भी बात करेंगे, क्लोज लूप सिस्टम की भी बात करेंगे, और उसके बाद एंड में हम लोग मॉडर्न और रोबस्ट कंट्रोल थ्योरी को देखेंगे। ये टेक्स्ट बुक ये देखें, इसमें ये लाइक ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन भी है लाइक दिस, के हम लोग कंट्रोल क्लासिकल कंट्रोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम की मॉडलिंग हम लोगों ने करनी है। सिस्टम की मॉडलिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें,
जी, सिस्टम की मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग करने के बाद ट्रांसफर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, टाइम डोमेन एनालिसिस क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, मतलब ये सारा जो मैथमेटिकल काम है ये हो रहा है हमारे पास क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी में। और मॉडर्न कंट्रोल में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग उसमें स्टेट स्पेस की मॉडलिंग करेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, सोल्यूशन ऑफ स्टेट्स के इक्वेशंस, इसके अलावा डायरेक्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस। तो ये हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस हैं क्लासिकल कंट्रोल के एंड अबाउट द मॉडर्न कंट्रोल। तो ये हम लोग डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, जो कि हमारे पास ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है, या तो अपने सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है या किसी और सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, एंड प्रोसेस कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स। डिस्टर्बेंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई अनवांटेड इनपुट सिस्टम में आ जाती है जो कि हमारे सिस्टम के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टर्बेंस। ओके, एंड द डिस्टर्बेंस कैन आइदर बी इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। उसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स थी, दैट इज अबाउट द नेचुरल कंट्रोल सिस्टम्स। उसमें यूनिवर्स है सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के जो वेरियस ऑपरेशंस हैं दैट इज रिगार्डिंग कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, ये भी एक कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हो सकता है, उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा एरोप्लेन्स हैं, वो कैसे स्टेबल हो रहे हैं आपके पास स्पेस में और किस तरह से वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें जो हैं दैट इज एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। ये वाली एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी, ये मैनुअल कंट्रोल की है। और ऑटोमेशन कंट्रोल में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर या डिजायर्ड वैल्यू टेन हो जाएगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो बर्नर गीजर का बंद हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो उस लेवल से ज़्यादा हीट अप ना हो। जी, ये इंपॉर्टेंट है आगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा कि ये फीडबैक नहीं इसमें इंक्लूडेड है। ओके क्लास, वी विल डिस्कस अबाउट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे एंड देन अबाउट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किस तरह का सिस्टम है कि जिसमें हमारे पास इनपुट आ रही है और इनपुट के बाद हमारे पास क्या है, देयर इज सम इनपुट, और इनपुट के बाद हमारे पास क्या है आउटपुट उस प्रोसेस के बाद, लेकिन हमारे पास कोई फीडबैक नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो फीडबैक जो कि मेजर करे इस आउटपुट को, कंपेयर करे आपकी सेट वैल्यू के साथ और उसमें एरर को देखे और दोबारा से अपने सिस्टम में क्या करे, चेंजेस करे। अच्छा, इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखें कोई भी सिस्टम है आपके पास या कोई भी जब तक कॉन्सेप्ट मीन्स किसी आपकी डेली लाइफ एग्जांपल से ही माइंड में आते हैं कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर एक डिश वॉशर है, ठीक है, डिश वॉशर्स में आप लोगों ने डिशेस प्लेट की, डिशेस प्लेस की, डिशेस प्लेट्स करने के बाद क्या कर दिया हम लोग, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, टाइम टाइम अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये कह दिया
कि इतने टाइम के लिए ये डिश वॉशर क्या करेगा अपने, ये क्या हो गया, ये एक प्लांट हो गया, ठीक है, जिसमें एक प्रोसेस चल रहा है या प्रोसेस हो गया, ये जो पोर्शन है, ठीक है, जो कि डिश वॉशर है जिसमें डिशेस प्लेस की हुई हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पे टाइम जब अप्लाई किया कि जी फॉर एग्जांपल उसने 15 मिनट्स के लिए वो ये सारा प्रोसेस करेगा, उसको क्लीन करेगा, उसके बाद और उसकी आउटपुट हमें क्या मिल रही है, आउटपुट में हमारे पास क्या है, क्लीन होनी चाहिए आपकी डिशेस, ठीक है, क्लीन होंगी डिशेस। लेकिन अब हम लोग फॉर एग्जांपल अगर कुछ प्लेट्स ज़्यादा, डिशेस जो हैं वो ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है, कुछ जो हैं जल्दी क्लीन हो जाती हैं, तो हम लोग ये चीज़ चेक नहीं कर रहे हमारी आउटपुट में। हमें बस क्या करना है कि एक टाइम सेट कर देना है। अब उस टाइम में अगर तो प्लेट्स जल्दी वॉश हो गई हैं तो हम ये नहीं होगा कि हमारा प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, या हमारे पास जो डिशेस हैं वो लेट, अगर उनको अभी मज़ीद टाइम लगेगा वॉश करने का, तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि उसमें वो अभी उसको मज़ीद ऑन रखेगा कि टाइम को इंक्रीज कर देगा, नहीं। इसके लिए क्या होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम है, उस स्पेसिफिक टाइम में हमारे पास क्या है कि उतने टाइम के लिए ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से करें कि यहाँ पे हम लोग इसके फीडबैक में एक क्लीन सेंसर अप्लाई कर दें, ठीक है, जो हमारे पास ये सेंस करे, वो ये देखे कि आपके पास प्लेट्स क्लीन हो गई हैं, तो वो उसको बताए, कंट्रोल यहाँ पे जाए, कंट्रोलर आएगा, कंट्रोलर को ये बताए कि जी प्लेट्स क्लीन हो गई हैं, तो वो आगे वो बताएगा उसको कि प्रोसेस को, ये प्लांट को, कि वो स्टॉप कर जाए। लेकिन अगर प्लेट्स क्लीन नहीं हुई तो वो मज़ीद अभी उस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये काम, ये वाली चीज़ कि हम लोगों ने आउटपुट का चेक रखना है कि आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट अटेन हुई है या नहीं हुई। तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, ये तब तक हम लोग अटेन नहीं कर सकते जब तक हम लोग क्या करें, इसे हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल। लेकिन जब तक हम लोग फीडबैक में कोई सेंसर अप्लाई नहीं करते, उस आउटपुट को हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सिस्टम हमारे पास ओपन लूप सिस्टम, मतलब इतना सिस्टम जो था जिसमें टाइम अप्लाई किया और उसने वॉश कर देना, ये क्लीन कर देना है डिशेस को, तो ये वाला सिस्टम क्या हुआ, ओपन लूप सिस्टम। लाइक अगर हम लोग एक ओवन, माइक्रोवेव ओवन है, उसमें हम लोग क्या होते हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज हम लोगों ने फूड उसमें प्लेस किया है उसको हीट अप करने के लिए, तो हम लोग उसमें एक स्पेसिफिक टाइम देंगे कि इतने टाइम के लिए उसने रन करना है। अब वो फूड आपका डिजायर्ड लेवल पे जो है वो आपके पास हीट हुआ है या नहीं हुआ, या अभी खाना ठंडा ही है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको दोबारा से उसमें टाइम सेट करना पड़ेगा कि दोबारा से इसको गर्म करें। अब वो ये तो नहीं बता रहा आपको कि जी आपका खाना गर्म हो गया है अब इसको निकाल लें, या फिर वो ये कहे कि जी ये भी खाना गर्म नहीं हुआ तो मैं उस टेम्परेचर को ज़्यादा कर दूं। ये सोचने समझने की सलाहियत एक माइक्रोवेव ओवन में नहीं है। वो सिर्फ इतना काम करेगा कि एक टाइम अप्लाई किया है, उस टाइम अप्लाई में जितना आपके पास खाना गर्म हो गया है, ये ज़्यादा गर्म हो गया है, ये कम गर्म हो गया है, तो वो उस लेवल पे के डिजायर्ड वैल्यू क्या चाहिए थी, एक नॉर्मल सी रेंज में उसको गर्म होना चाहिए था खाने को, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो आपको ये नहीं बताएगा। वो उसमें सिर्फ एक इनपुट दिया आपने, वो टाइम की इनपुट है, टाइम की इनपुट है, और वो क्या करेगा, आपको गर्म कर देगा, चाहे वो गर्म ज़्यादा हो जाए, चाहे वो कम गर्म हो, चाहे आपको दोबारा से उसमें टाइम अप्लाई करना पड़े। सिमिलरली जो सिंपल वॉशिंग मशीन्स थी, उसमें भी हमारे पास यही सिस्टम है कि हमारे पास आपने एक टाइम अप्लाई किया, वॉशिंग का टाइम है, उसमें वॉश करेगा, और आपको नहीं, उसको नहीं पता कि कपड़ों की क्या लेवल है, क्लीननेस का क्या लेवल है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है आपके पास, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि हमारे पास एक ग्राउंड में डिफरेंट प्लांट्स हैं, ग्रास लगी हुई है, ठीक है, और उस ग्रास में हम लोगों ने एक स्प्रिंकलर है जो कि उन पे पानी को, उनको पानी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये कि हमारी सॉइल ऑलरेडी कितनी मॉइस्ट है रेन की वजह से, उसको नहीं है पता, ठीक है। उसको तो हम लोग जितना टाइम बताएंगे उतने टाइम के लिए वो क्या करेगा, पानी स्प्रिंकल करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, एक सॉइल सेंसर लगा लें, ठीक है, एक हम लोग मॉइस्ट सेंसर लगा लें, वो बताए कि जी आपकी सॉइल ऑलरेडी इतनी मॉइस्ट है, इतने मॉइस्चराइजर है उसमें कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोज लूप सिस्टम। लेकिन जब तक
ये आपके पास ओपन लूप रहेगा जब तक कि आप इसको कोई भी सेंसर अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग ये नहीं देख रहे कि हमारी आउटपुट डिजायर्ड लेवल पे आई है या नहीं आई। हम लोगों ने बस एक इनपुट अप्लाई की और उसकी आउटपुट आ गई। हम लोगों ने एक टाइम दिया, उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उतने टाइम के लिए प्रोसेस जो है वो रन हुआ, सारा प्रोसेस, और रन होने के बाद एंड तक पहुंचे, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी आउटपुट वो आई है जो कि हमें डिजायर्ड थी या नहीं। सो दैट इज अबाउट closed loop, open loop control systems. अच्छा, ओपन लूप सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना इजी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फीडबैक नहीं है, फीडबैक सेंसर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, इसको इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये है कि इसमें ये और भी पॉइंट्स हैं जो कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि एक तो इसकी कैलिब्रेशन इनपुट पे बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर खाना गर्म नहीं हुआ ओवन में तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसमें दोबारा से एक टेम्परेचर सेट करेंगे, बार बार कैलिब्रेशन कर रहे हैं इनपुट की। अगर वॉशिंग ठीक तरह से नहीं हुई कपड़ों की तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसका टाइम सेट करना पड़ेगा, उसको एक मजीद एक टाइम के लिए उसको रन करेंगे प्रोसेस को, ताकि हमारे पास जो है वो डिजायर्ड आउटपुट अटेन हो जाए। इसके अलावा अगर हमारे पास डिश वॉशर में डिशेस क्लीन नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा, उस पर मज़ीद टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो उसको देखना पड़ेगा, उसको इनपुट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इनपुट की कैलिब्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इनपुट की बार बार कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। देयरफॉर इसकी एक्यूरेसी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट की कैलिब्रेशन पर, ठीक है। जितना आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं है कि खाना ओवन में रख के उसको भूल जाना है कि बस ठीक है खाना ओवन में रखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें कि हमें बार बार से इनपुट को देखना पड़ेगा कि हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें अचीव हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग उस पर इनपुट को मज़ीद बढ़ाएं, कम करें, कैसे करें, वो हम लोग उसकी कैलिब्रेशन करेंगे। इसके अलावा ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी सिवियरली अफेक्टेड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस डिस्टर्बेंसेस। और अगर हमारे पास कोई इन्वायरमेंट में वायलेशन आ जाती है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में, तो इस सिस्टम की जो आउटपुट है वो भी हमारे पास क्या होती है, बैडली इफेक्टेड होती है ना। व्हाट इज अबाउट द कंट्रोल लूप, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें तो ये तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाने चाहिए कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है एंड व्हाट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ये देखें एक बड़ी ये कंप्लीट सी ना एक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। मीन्स इसको अपने माइंड में हमेशा रखना है। एक तो जैसे ही आपके माइंड में क्लोज लूप सिस्टम या ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो फ़ौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ लाजमी इसमें एक कंट्रोलर, वो कंट्रोलर भी है और कंट्रोलर है, लेकिन एक सेंसर की बात कर रहे हैं, कोई मेजरिंग डिवाइस है जो कि उस आउटपुट को मेजर कर रही है और फिर उसको इनपुट के साथ कंपेयर कर रही है, और इन दोनों में हम लोग बेसिकली क्या निकालते हैं, एरर, ठीक है। कंपैरेटर कंपैरिजन इज व्हाट, कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, एक सेट वैल्यू है ना, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें सेट वैल्यू में और आउटपुट में हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, हम लोग कंपैरेटर को ये बता दिया कि ये सेट वैल्यू है, हमें सिस्टम की ये सेट वैल्यू चाहिए। अब वो क्या करेगा, उस आउटपुट को कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद कंट्रोलर को बताएगा। अगर तो वो आउटपुट ज़ीरो है तो सिस्टम क्या करेगा, स्मूथली रन करता रहेगा। अगर इनपुट ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, कंट्रोलर को बताएगा कि इसको कम कर दे, ठीक है। तो वो आगे से उसके जो वेरिएबल्स होंगे उनमें वेरिएशन होगी और वो अल्टीमेटली इन कंट्रोल्ड वेरिएबल्स को अफेक्ट करेगा और सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। अगर आपके पास स्लो डाउन चल रहा है तो वो कंपैरिजन करने के बाद वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है, तो वो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली इसको ऑब्जर्व करेगा, वो दोबारा से मैनिपुलेट वेरिएबल्स को वेरी करेगा और अल्टीमेटली वो अफेक्ट करेंगी आउटपुट वेरिएबल्स को और सिस्टम को स्मूथ करेंगे। तो ये एक बड़ी सिंपल सी इसमें पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो ये है कि जब भी हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी आउटपुट को मेजर कर रहे हैं अपनी सेट वैल्यू के साथ और उन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। अगर एरर ज़ीरो आ रहा है तो सिस्टम स्मूथली रन करेगा,
अगर एरर ज़ीरो नहीं है, आपके पास कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो वो आपकी वहाँ पे एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, एक कंट्रोलर है, जहाँ पे आपने फिक्स बताया हुआ है कि जी इस तरह होना चाहिए। अगर आउटपुट कम हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो इन ब्रीफ, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज़ विद द फीडबैक। इलेक्ट्रिक आयरन है, आपके पास एयर कंडीशनर्स हैं। अच्छा, अब ये सबसे बड़ी एग्जांपल, आपके पास जो इन्वर्टर एसीज हैं, अब क्या हो रहा है इसमें कि आपने एक सेट टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या करेगा, आपके रूम के टेम्परेचर को कंपेयर करता रहेगा। जब वो उस लेवल पे आ जाएगा 26 डिग्री पे, फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा कि एरर तो ज़ीरो हो गया, फिर वो स्लीप कर देगा आपका सिस्टम, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको करंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग स्प्लिट एसीज पे मूव किए, पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, विंडो एसी का, ठीक है, जो कि कॉन्टीन्यूसली वो रन कर रहा है, उसको ये नहीं पता, वो एक ओपन लूप सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा था। मीन्स उसको ये नहीं पता कि वो टेम्परेचर अप्लाई कर रहा है और वो उसको गिराता जा रहा है टेम्परेचर को। इसीलिए हम कहते थे कि जब विंडो एसीज थे, उनकी कूलिंग, उससे कूलिंग का इफेक्ट ज़्यादा था। लेकिन तब हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, स्प्लिट एसीज आ गए, जिसमें 5 मिनट के लिए एसी चलेगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो ट्रिप, जिसे हम लोग वर्ड जो यूज़ करते हैं, ट्रिप कर जाता था। फिर सिस्टम चल रहा है, फिर ट्रिप कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो साइकिल, ड्यूटी साइकिल आ रहे हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अच्छा, उसमें भी जब वो ऑन होता था दोबारा से, तो उस पर बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता था, फिर ऑन होता था, फिर उसकी करंट उतनी होती थी। लेकिन जब आप इन्वर्टर एसीज पे मूव किया, स्विच किया उस पर, इन्वर्टर एसीज या इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स का कॉन्सेप्ट आया, उसमें हमारे पास क्या, जब एक दफ़ा वो सेट वैल्यू अचीव हो जाएगी, तो उसके बाद सिस्टम बहुत कम करंट लेगा आपका, ठीक है। शुरू में तो वो करंट उतने ही ले रहा है जितना कि आपका नॉर्मल सिस्टम ले रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपने एयर कंडीशनर ये इन्वर्टर्स को इम्प्लीमेंट करना है, कहीं पे भी इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए ये बड़ा मैटर करता है कि आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कितना अफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका डोर ओपन है, अगर वो डोर ओपन है तो वो तो टेम्परेचर कभी भी वो अटेन नहीं कर पाएगा जितना कि वो सेट किया हुआ है। तो वो चलता रहेगा उसी करंट वोल्टेज की वैल्यू पे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास मजीद कोई खिड़कियां दरवाजे खुले हैं, तो ये सब आपको एक क्लोज जो इन्वायरमेंट उसके लिए उसको देना है कि इतना एरिया है इस रूम का, इतने एरिया के लिए जी ये 1.5 टन का एसी जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका पहले सारा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वो सेट टेम्परेचर को जब अटेन कर लेगा, तो वो अपना वोल्टेज लेवल और अपनी करंट को जो है वो क्या कर देगा, उसमें वो लेवल नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर है, अब थर्मोस्टेट क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या लगा हुआ है, कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट, ठीक है, जो कि टेम्परेचर को देख रहा है। जब एक टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपके कंप्रेसर को बंद करवा देगा, ठीक है। फिर दोबारा से कंप्रेसर को ऑन करेगा, ठीक है। लाइक इस तरह से ही हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स की। अच्छा, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लाइक मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम्स। मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास इनपुट में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर। और ये मतलब सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है। मतलब पहले तो हम लोग जो बात कर रहे थे सिस्टम की, जिसमें एक इनपुट है और आउटपुट भी एक ही है, और इनका कंपैरिजन हो रहा है। अब इसके अगर देखें, इसकी मल्टी वेरिएबल क्या मतलब है कि डिफरेंट आपके पास इनपुट पे आ रही हैं, इनपुट्स भी मल्टीपल हैं, मल्टीपल इनपुट हैं और मल्टीपल आउटपुट हैं, और उनका आगे कंपैरिजन है और आगे कंट्रोलर के पास जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, ये वही है, फीडबैक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, फीडबैक कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद आगे सिस्टम्स हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ये अभी लास्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म में क्या होता है, आपके पास एक सर्वो सिस्टम और सर्वो मैकेनिज्म इज ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम
ठीक है। होता क्या है, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम ही होता है या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ही होता है, लेकिन ये इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसकी आउटपुट पे कोई ना कोई मैकेनिकल पोजीशन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या वेलोसिटी देख रहे हैं, या एक्सेलरेशन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पैरामीटर्स इलेक्ट्रिकल हों, वो पैरामीटर्स मैकेनिकल हो सकते हैं, वो पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं। लाइक दिस, अगर इसी एग्जांपल में देखें एंटीना पोजीशनिंग सिस्टम, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें एंटीना की पोजीशन को देख रहे हैं। इधर यहाँ पे पोजीशन सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इसकी पोजीशन को देख रहे हैं, और फिर जहाँ पे इसकी मैक्सिमम आउटपुट आएगी उस पोजीशन की तरफ एंटीना को क्या कर देगा, इंटेलिजेंटली आगे। ये जो पोजीशन सेंसर्स हैं ये कनेक्टेड हैं आपके कंट्रोलर के साथ, ठीक है। और ये आपको बताएगा जी कि पोजीशन सेंसर्स क्या करेंगे, यहाँ से इस एंटीना की पोजीशन को सेंस करेंगे, कंट्रोलर को बताएंगे, कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट में इसकी मोटर को रन करेगा, मोटर को रन करने के बाद जिस पोजीशन पे आपको चाहिए एंटीना को वहाँ पे मूव करवा देगा, ठीक है। दिस इज सिंपली ये सर्वो मैकेनिज्म सिस्टम। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा, डिफरेंट आगे के आपके पास किस तरह के कंट्रोल सिस्टम हो सकते हैं। लीनियर है, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। लीनियर सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप क्या होता है, लीनियर, या लीनियरली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मतलब लीनियर है। अगर इनपुट इंक्रीज कर रही है तो आउटपुट भी इंक्रीज कर रही है, अगर इनपुट डिक्रीज कर रही है तो आउटपुट भी डिक्रीज है। दैट्स मीन कि इनपुट और आउटपुट आउटपुट में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अगर इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज ए नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है। नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। इनपुट जो है ये देखें अब हम, लाइक दिस के ये करेक्टरिस्टिक्स है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे, यहाँ तक तो ये अगर करेक्टरिस्टिक को देखें हम लोग, इस करेक्टरिस्टिक को जो कि किसी सिस्टम की हैं, एडहेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ रोड, तो इसमें ये देखें ये एडहेशन कोएफिशिएंट है और ये क्रीप है। ये देखें, ये अगर ग्राफ देखें हम लोग तो ये एक लीनियर ग्राफ है इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ कि इनपुट आप इनपुट कांस्टेंट चलेगी और आउटपुट जो है एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास। अब्रप्ट चेंज आया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होनी शुरू हो गई, ये डाउन चली गई, ठीक है। तो वो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज है, ठीक है। एक यहाँ तक एक लीनियर रिलेशनशिप था। तो अगर इनपुट और आउटपुट में एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो देन इट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है ना। ये हमारे पास इनपुट है और ये आउटपुट है। यहाँ पे हम इनपुट इनपुट को तो भराते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ पे 0.02 के बाद इनपुट इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जो आउटपुट है वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू हमारे पास 0.4 पे ही तकरीबन ये कांस्टेंट ही जा रही है, ठीक है। मतलब इनपुट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उसमें कोई इतना चेंज नहीं आ रहा, जिसमें इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट, ठीक है। अगर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम वेरिएंट। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही तो उसको हम क्या करेंगे, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। मतलब इन दोनों चीज़ों को फॉरन माइंड जैसे ही वेरिएंट की बात करेगा, इसका मतलब ये है कि अगर टाइम वेरी कर रहा है तो सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स भी वेरी हो रही हैं। अगर टाइम वेरी कर रहा है, सिस्टम की करेक्टरिस्टिक वेरी नहीं हो रही, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम इन वेरिएंट, ठीक है। मतलब अगर दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं कि टाइम वेरिएंट ऐसा सिस्टम है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, एंड टाइम इन वेरिएंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। जी, उसके बाद है कॉन्टिन्यूस डाटा वर्सेस डिस्क्रीट डाटा सिस्टम। हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि जिसमें हमारे पास सारा का सारा सिस्टम वेरिएबल्स जो है दे आर ए फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम, ठीक है। मतलब जो एक्स एक्सिस है इसमें वो हमारे पास क्या है, टाइम का है। वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस इज अबाउट द सिस्टम करेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये सिस्टम के वेरिएबल्स हैं। जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है आपके पास, टाइम। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक सिस्टम कॉन्टिन्यूस टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस डाटा। लेकिन अगर इसमें हम लोग देखें तो ये जो टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसको हम लोगों ने डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज में चेंज किया हुआ है, ठीक है।
तो उन पे आपका डाटा जो है वो शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये लेवल 0 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, ये 2 है, ठीक है। मतलब 1 और 2 के दरमियान कुछ नहीं है। हमें पता है ना डिफरेंस क्या होता है अगर हम डिस्क्रीट की बात करें या कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस या एनालॉग वैल्यू क्या होती है कि वो बता रही है कि यहाँ पे हम अगर 0 और 1 है तो इसके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज है हमें इन सब वैल्यूज का बिहेवियर पता है। लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता। डिस्क्रीट में क्या होता है कि 0 पे वैल्यू होगी या 1 पे होगी या 2 पे होगी, इन दोनों के बिटवीन क्या है वो हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। उन दोनों इनपुट्स के बिटवीन जो बिहेवियर है सिस्टम का उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डाटा, जिसमें आपके पास स्लॉट्स बन गई डिफरेंट। मतलब 0 पे 1 पे वैल्यू आ रही है, 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है, 4 पे। लेकिन कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि हमें कॉन्टिन्यूसली पता है कि 0 से लेके 100 तक क्या हो रहा है, 1 और 2 के बिटवीन भी हमें पता है कि क्या हो रहा है। So discrete data and continuous data। उसके बाद आगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक कंट्रोल आ गया, ठीक है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जैसे लाइक दिस है, रिस्पॉन्स जो है इज प्रिडिक्टेबल एंड रिपीटेबल, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास एक इनपुट है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आ रही है, तो आप नेक्स्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आने वाली इनपुट या आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक। और उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम्स है। अगर हमारे पास क्योस है, इसे हम कहते हैं एक वर्ड होता है, ये बाकायदा एमएस में एक सब्जेक्ट है, दैट इज क्योस थ्योरी। तो क्योस में क्या होता है, क्योस का क्या मतलब है कि क्यास, जैसे हम वो कहते हैं ना क्यास अराई करना, या फिर रैंडम चीज़ें। जैसे आपके माइंड में डिफरेंट थिंकिंग्स हैं, रैंडम डायरेक्शंस में है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सके कि आने वाले कल में क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक या रैंडम। ये देखें, अगर आप लोग इस इनपुट को चेक करें तो ये देखें सिस्टम के बिहेवियर को, कि यहाँ पे कुछ पता नहीं है, कभी वो ज़्यादा हो रहा है, कम पैटर्न है, फिर ज़्यादा है, फिर कम, मतलब इसका कोई बिहेवियर नहीं है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स में हमारे पास क्या था कि हम लोग अब जो सिस्टम्स पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या कंट्रोल सिस्टम है, आगे मैन मेड हैं, ऑटोमेटिक हो गए, फिर क्लोज लूप में आ गए, लीनियर और टाइम इन वेरिएंट। ये इस सारे के सारे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एलटीआई कंट्रोल सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। मतलब ऐसा सिस्टम, एलटीआई सिस्टम्स कैसे होंगे, एक तो वो मैन मेड होगा, ठीक है, उसके अलावा वो क्लोज लूप होगा, उसके अलावा वो टाइम टाइम इंडिपेंडेंट होगा, और उसके अलावा क्या होगा, लीनियर होगा। तो ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक अगर किसी सिस्टम में है तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, एलटीआई या लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, अब ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जी स्पीड कंट्रोल है। स्पीड कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल दी है कि लाइक अगर ये आपके पास है फ्यूल का इनलेट, ठीक है। अब ये फ्यूल की इनलेट कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस इंजन की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। स्पीड कम या ज़्यादा भी चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली फ्यूल को ज़्यादा इन करवाना पड़ेगा, अगर स्पीड नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देंगे। लाइक ये कि अगर हमारे पास स्पीड कम है तो ये आपके पास स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, ठीक है। ये पुराने एक एरिया का ये एक उन्होंने बनाया हुआ स्पीड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये स्पीड गवर्नर है। ये क्या करेगा, इसकी ये इस नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे आपके पास पावर सिलेंडर एंड ऑयल अंडर प्रेशर, मतलब इसकी साइड्स में, ये जो पावर सिलेंडर है इसकी साइड्स में क्या कर रहा है, जब इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस प्रेशर के थ्रू ये जो ऑयल है यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, इस सिलेंडर में। अच्छा, अब अगर क्या है कि इसकी स्पीड कम है तो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगी, और इसकी वजह से इस प्रेशर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये ऑयल मूव करेगा, और इसकी वजह से जो कंट्रोल वाल्व है यहाँ पे लगा हुआ ये मूव करेगा।
यस ओके, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे इस एग्जांपल को। अच्छा ये फ्यूल है और ये स्पीड गवर्नर है। इस स्पीड गवर्नर को हम लोगों ने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि ये जो ऑयल है ये यहाँ पे मूव नहीं करेगा पावर सिलेंडर की बोथ साइड में, किसी भी साइड में फ्लो नहीं करेगा अगर आपके पास डिजायर्ड स्पीड है। ठीक है, स्पीड गवर्नर को ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि हमारे पास ये जो पावर सिलेंडर है इसकी साइड्स में ये जो ऑयल है ये मूव नहीं करेगा अगर तो ये स्पीड गवर्नर जो है वो डिजायर्ड स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अगर स्पीड हमारे पास क्या हो जाती है, डिजायर्ड स्पीड से कम हो जाती है। ठीक है, अगर स्पीड क्या हो जाएगी, डिजायर्ड स्पीड से कम हो जाएगी ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन द क्या होगा उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाएगा इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ स्पीड गवर्नर। और ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये इस कंट्रोल वाल्व को डाउनवर्ड मूव करेगा और डाउनवर्ड मूव करने के बाद ये इस फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा करेगा और स्पीड ऑफ इंजन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ताकि वो डिजायर लेवल पहुंचे। ये वही आपके पास है कि आप लोगों ने क्या कर लिया है कि एक डिजायर्ड स्पीड को सेट कर लिया। ठीक है, ये बता दिया कि जी ये हमारी डिजायर्ड स्पीड है। अब अगर इंजन की स्पीड उस डिजायर्ड से कम हो जाती है तो क्या करेगा, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी और ये जो ऑयल है ये इनमें मूव करेगा, इसकी साइड में पावर सिलेंडर मूव करेगा और ये इस वाल्व को डाउनवर्ड मूव करेगा। और जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ये फ्यूल को एंटर होने देगा। मजीद जितना फ्यूल एंटर ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी स्पीड इस डिज़ायर्ड स्पीड के एक्चुअल या इक्वल नहीं हो जाती। उसके बाद अगर उसका दूसरा पॉइंट देखें तो अगर स्पीड हमारे पास जो है इंजन की वो डिज़ायर्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास कंट्रोल वाल्व जो होगा ये अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रोल वाल्व अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये देखें, आप अगर इसकी पोजीशन को देखें तो ये अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, ओपन। ओपन का क्या मतलब है कि वो फ्यूल को इनलेट होने देगा, मजीद आने देगा ताकि वो स्पीड ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर स्पीड पहले ही ज़्यादा है और उसको हम लोगों ने कम करना है डिज़ायर्ड स्पीड के कंपैरिजन में, तो ये हमारे पास क्या करेगा, इसको अपवर्ड मूव करेगा और इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, ताकि मजीद फ्यूल जो है वो एंटर ना हो सके और स्पीड ऑफ इंजन जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए अनटिल द डिजायर्ड वैल्यू इज रीच्ड। ठीक है, तो इस सारे सिस्टम में हमारे पास जो कंट्रोल स्पीड कंट्रोल सिस्टम था, इसमें जो प्लांट है, जो कंट्रोल्ड सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, ये इंजन है। एंड किस सिस्टम को कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल्ड सिस्टम है। एंड द कंट्रोल्ड वेरिएबल इसमें हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली स्पीड। कंट्रोल सिस्टम हमारे पास क्या है, इंजन है और जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, स्पीड। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड इज द एरर सिग्नल। ठीक है, वो ऑलरेडी बता दिया कि इस इंजन से कितनी स्पीड आ रही है। ठीक है, वो ज़्यादा है कम है और वो चेक करेगा उस डिजायर्ड स्पीड के साथ और उनके बिटवीन जो कंपैरिजन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर सिग्नल। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कंट्रोल सिग्नल हमारे पास क्या है, द कंट्रोल सिग्नल इसमें हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिग्नल ये फ्यूल है, अमाउंट ऑफ फ्यूल। कंट्रोल सिग्नल क्या है, अमाउंट ऑफ फ्यूल। ठीक है, मतलब ये एक एक्शन, कंट्रोलिंग एक्शन क्या, ऑब्वियसली अगर वो वाल्व ओपन हो रहा है तो वो फ्यूल को मजीद आने देगा। इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिग्नल है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इंजन जो है वो हमारे पास एक्चुएटिंग सिग्नल है। ठीक है, द एक्सटर्नल इनपुट टू जो है वो हमारे पास इज द डिस्टर्बेंस है, एन अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है इन द लोड इज अ डिस्टर्बेंस। तो ये हमारा सारा का सारा सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग स्पीड को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ये वाल्व ओपन या क्लोज होगा, फ्यूल को इनलेट होने देगा, फ्यूल को इन करेगा, जितना फ्यूल ज़्यादा आएगा स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड को कम करना है तो इस वाल्व को कम कर देंगे ताकि फ्यूल की सप्लाई कट डाउन हो जाए। और इसमें ये हम लोगों ने देखा कि इसमें डिफरेंट मतलब इसमें आउटपुट प्लांट क्या है, इसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या है, इसमें कंट्रोल सिग्नल क्या है। तो डिफरेंट इसमें हम लोगों ने ये पॉइंट्स को देखा। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट और एग्जांपल है,
ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की है, वो जो पहले थी हमारे पास वो थी हमारे पास स्पीड कंट्रोल सिस्टम की। ये हमारे पास है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है। अब ये हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर। अब इलेक्ट्रिक फर्नेस बेसिकली क्या कर रहा है कि ये इस फर्नेस के टेम्परेचर को बेसिकली हम लोगों ने कंट्रोल करना है। अब ये जो थर्मोमीटर है ये इस फर्नेस के जो टेम्परेचर है उसको उसकी रीडिंग नोट कर रहा है। अब ये थर्मोमीटर इसकी रीडिंग नोट करेगा, ऑब्वियसली थर्मोमीटर है तो ये एनालॉग में इसकी वैल्यूज आ रही होंगी, एनालॉग थर्मोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो आगे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, जो इस एनालॉग वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर दे। उसको उसके बाद इसको हम लोग इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस के थ्रू कंट्रोलर के साथ, जिसमें हमारे पास उसके बाद दोबारा उसको इंटरफेस करेंगे एम्पलीफायर एंड देन रिले। ठीक है, मतलब ये है कि अगर इसका टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फर्नेस का, तो ये अल्टीमेटली इस रिले के थ्रू इस हीटर को क्या करा देगा, क्लोज मतलब ऑफ कर देगा। ठीक है, ताकि वो टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर अटेन हो जाए। अगर इस टेम्परेचर से जो इसका डिजायर्ड टेम्परेचर है उससे ये कम है तो क्या करेगा, इस सारे प्रोसेस में ये यहाँ पे एनालॉग वैल्यू डिजिटल में कन्वर्ट होगी, डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट होने के बाद कंट्रोलर के पास जाएगी, कंट्रोलर के पास जाने के बाद आगे वैल्यू रिले के पास जाएगी, और रिले ये करेगी कि या तो वो हीटर को ऑन करे या ऑफ करे। ठीक है, ये दो दो काम होंगे। किस किस बेस पे होंगे, या तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वो हीटर को ऑन करा देगी रिले, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिले के थ्रू आपके पास हीटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ताकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रह सके। सिमिलरली ये आपके पास वाटर लेवल की एग्जांपल है। ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले डिस्कस की, जिसमें एक मैनुअल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल जो है वो हेल्दी पर्सन का क्या आ रहा होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कार्ब्स हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल है ना, बायोलॉजिकल एग्जांपल है। अगर हम लोग कार्ब्स लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जैसे ही कार्ब हमारी बॉडी में जाते हैं तो एकदम स्पाइक से शुगर ज़्यादा होती है। जैसे ही शुगर ज़्यादा होती है तो आपके पास पिंक्रियाज है, पिंक्रियाज में क्या होता है आपके पास, कि आपके पास दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, एक हार्मोन जो है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, डेट इज अबाउट इंसुलिन। वो इंसुलिन क्या करती है, ये एक हार्मोन है बेसिकली, वो उस ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ठीक है, कितनी इंसुलिन जनरेट होनी है वो डिपेंड कर रहा है कि आपका ब्लड ग्लूकोज कितना है, कितनी शुगर आपकी इंक्रीज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली इंसुलिन क्या होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेट होगी। अगर वो ज़्यादा जनरेट है आपके पास तो वो इंसुलिन क्या करेगी, उसको उठा के कुछ आपकी फॉरेन सेल्स में लेके जाएगी, और उसको एनर्जी में कुछ आपके लिवर में स्टोरेज होती है, और कुछ जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, फॉरेन सेल्स में जाएगी और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, मतलब फैट में उसको ऐड नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर यही आपका सिस्टम जो है ये सारा का सारा इंसुलिन का, और जैसे कि लाइक डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, या तो आपका पिंक्रियाज बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा सर्च भी करेंगे इस एग्जाम्पल को, तो उसमें टाइप 1 डायबिटिक है, तो टाइप 1 डायबिटिक के लिए क्या है, टाइप 1 डायबिटिक में बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं है कि जी इंसुलिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको सारा का सारा दवाइयों के थ्रू कंट्रोल करना पड़ेगा, मेडिकेशन के थ्रू। लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, उसमें आपका जो पिंक्रियाज है वो काम कर रहा है, वो इंसुलिन जनरेट कर रहा है, लेकिन उसने कम जनरेट करनी है, ज़्यादा करनी है, शुगर को वो कंट्रोल सही तरह नहीं कर पाएगा आपके शुगर लेवल को। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये टास्क है, दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स देखी हैं, डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया कंट्रोल सिस्टम्स की, और ऑटोमेशन कंट्रोल, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप क्लोज सिस्टम। इसके अलावा हम लोगों ने साथ साथ जिनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसकी एग्जांपल्स को इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आ लोगे क्लास में 70 के राउंड में, तो नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि सबसे पहली एक्टिविटी ये होगी कि आप में से किसी भी स्टूडेंट से मैं कहूँगी कि मुझे कोई कंट्रोल सिस्टम की एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं वो बायोलॉजिकल हो सकती है, वो किसी भी इन्वायरमेंट की एग्जांपल हो सकती है, तो वो आप लोगों ने सर्च करनी है कि वो किस तरह की आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल आपको बस समझ आनी चाहिए कि कैसे खुद से सोचें, अपने इन्वायरमेंट को देखें, अपने घर में कुछ एनालिसिस करें, डिफरेंट आपके इक्विपमेंट्स हैं, होम अप्लायंसेस हैं, उनको देखें,
या कोई और मशीन है उसका प्रोसेस देखें, किसी प्लांट के बारे में बताएँ, किसी इंडस्ट्री के बारे में बताएँ, या कोई भी नेट से सर्च करें। बायोलॉजिकल एग्जांपल ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि आपके अपनी ह्यूमन बॉडी पे हम लोग वो सारा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम को। तो ये आप लोगों ने लाजमी नेक्स्ट क्लास तक ये एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो मेरा फर्स्ट टास्क यही होगा कि आप लोगों से इसकी मैं एग्जाम्पल पूछूं कि व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल्स आपको बताऊं। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोग इस तरह से करेंगे कि आप लोग ऑनलाइन आएंगे ताकि हम लोग उसकी अटेंडेंस लें, और इस लेक्चर के बारे में मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आप लोगों को क्या समझ आया।